ان کے سامنے جو ہے رائی کے دانے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. پہاڑ کو رائی کے دانے کی طرح اٹھا کے پھینک سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رجال الغیب اولیاء میں سے ہیں یا فرشتے؟ رجال الغیب اولیاء اللہ میں سے ہیں یا فرشتوں میں سے ہے؟ بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں یا بہت سارے لوگ الگ الگ طرح کی باتیں کرتے ہیں. آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کہ یہ رجال الغیب فرشتے ہیں یا انسانوں میں سے ہے. یہ رجال ہیں کون؟ یہ سب سے اہم بات سمجھنے کی ہے کہ رجال الغیب انسانوں میں سے ہیں یا فرشتوں میں سے ہیں. اسی موضوع پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ سے گفتگو کریں گے، آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانے کی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رجال علامہ شاعر مشرق علامہ صوفی اقبال صاحب کا ایک کلام ہے، ایک شعر ہے. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. رجال الغیب در اصل اللہ کے وہ پر اسرار بندے ہیں جنہی کے تعلق سے علامہ صاحب کے کلام کا یہ شعر ہے. یعنی یہ پر اسرار بندے جو ذوق خدائی لیے موجود ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ قوت و طاقت بخشی ہوئی ہے کہ دریاؤں اور صحراؤں کو ایک ٹھوکر سے ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ روحانی طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ اگر یہ ٹھوکر مار دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. پہاڑ کو یہ رائی کے دانے کی طرح اٹھا کے پھینک سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ قوت و طاقت بخشی ہوئی ہے. اب کسی کے دماغ میں اگر خیال آئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو حضرت آصف بن برقیہ کا ذکر جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے، تقریباً 40 گز چوڑا 80 گز لمبا یا اس سے کم زیادہ جو بھی ہو، تخت بلقیس کو ایک پل میں اٹھا کر کے دربار سلیمانی تک پہنچا دینے والے لوگ، سمجھ میں؟ تو اولیاء کرام کی وہ شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت بخشی ہوئی ہے کہ یہ دریا، یہ پہاڑ ان کے سامنے جو ہے رائی کے دانے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. پہاڑ کو رائی کے دانے کی طرح اٹھا کے پھینک سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو وہ قوت بخشی ہے. یہ وہ حضرات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں خوب اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب روحانی طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے. انہی کو رجال الغیب کہا جاتا ہے. ان کا کام دنیاوی مصروفیات سے الگ ہو کر، یعنی یہ دنیاوی کام میں مصروف نہ ہوتے ہوئے اس کی مصروفیت دنیا کے تجارات اور دیگر چیزوں سے مصروف نہ ہو کر کے نظام عالم پر نظر رکھنے والے یہ اللہ کے مخصوص مقربین بندے ہیں جو رجال الغیب کہلاتے ہیں. یہ اپنی روحانی طاقت سے ملکوں پر روحانی حملہ کر کے قوموں کو پامال کرنے کے بعد سلطنتیں قائم کرنے کے بجائے، جیسے دنیا کا ایک نظام ہوتا ہے کہ کسی ملک پہ حملہ کر کے
उस पे अपनी सल्तनत कायम करता है। तो ये मर्दान गैब, ये रिजालुल गैब, किसी मुल्क को अगर किसी क्या नाम है कौम को अगर पामाल करके किसी मुल्क को अगर ये इताब का शिकार बनाते हैं तो उस पर अपनी हुकूमत ज़ाहिरी कायम नहीं करते, बल्कि लोगों के कुलूब को ये मुसख्खर करते हैं। लोगों के कुलूब को मुसख्खर करके अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ये माइल हो कर देते हैं उनके कुलूब को, और ये कायनात के निज़ाम को संवारने वाले होते हैं। यही अल्लाह के वो पुरस्कार बंदे जिन्हें रिजालुल गैब कहा जाता है। यानी जिन जो आबादियाँ तबाह होती हैं, उसके बाद आपने अक्सर देखा कि लोग अल्लाह की तरफ उनकी कुलूब माइल हो जाते हैं, है ना। लोग अल्लाह अल्लाह करने लग जाते हैं, खैर की तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं। ये सारा किरदार होता है रिजालुल गैब का। ये वो मर्दाने गैब हैं जो लोगों के कुलूब को मुसख्खिर करके निज़ाम आलम को संवारने का काम अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं के ज़िम्मे दिया रखा हुआ है। ये वही लोग हैं जो रिजालुल गैब कहलाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें कायनात अर्दी यानी ज़मीन पर लोगों की ज़िंदगी के कामों में आसानी पहुँचाने के लिए मसरूफ़ कर रखा है। यानी ये औलियाए मस्तूरीन हैं। अल्लाह तबारक व तआला एक ज़ाहिरी निज़ाम है और एक बातनी निज़ाम है। ये निज़ाम बातनी निज़ाम के ज़िम्मेदारान हैं। एक है हुकूमत ज़ाहिरी और एक है हुकूमत बातनी। ये बातनी हुकूमत और बातनी निज़ाम को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसको संवारने में, उसके निज़ाम को दुरुस्त करने के काम में अल्लाह तबारक व तआला ने इनको लगाया हुआ है। औलिया, अब समझ ले, औलियाए कराम जिनकी समझ में अभी तक बात ये नहीं आई कि ये इंसानों में से है या फरिश्तों में से है, तो अब आप समझ लें कि औलियाए कराम दो तरह के होते हैं। औलिया अल्लाह के दो अक़साम हैं। एक को कहते हैं औलियाए ज़ाहिरीन और एक को कहते हैं औलियाए मस्तूरीन। तो ये जो रिजालुल गैब हैं ये औलियाए मस्तूरीन हैं, यानी इंसानों में से ही हैं। ये मर्तबे अब्दाल को पहुँचे होते हैं, अब्दालों में से होते हैं। ये जितने भी रिजाल होते हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए बहुत सारी का नाम हमको क्लिप बनानी पड़ जाएगी। तो इनके बहुत सारे अक़साम, इनकी जिम्मेदारियाँ, इनकी गर्दिश, ये कहाँ कहाँ चलना। लेकिन आज का हमारा ये मौजू है कि ये औलियाए मर्दाने गैब जो है रिजालुल गैब, ये इंसानों में से हैं या फरिश्तों में से है। तो याद रखें कि ये औलिया अल्लाह में से हैं, इंसानों में से ही हैं। ये औलिया दो तरह के हैं, एक है औलियाए ज़ाहिरीन, दूसरे हैं औलियाए मस्तूरीन। अब औलियाए ज़ाहिरीन का काम क्या है और औलियाए मस्तूरीन का काम क्या है? औलियाए ज़ाहिरीन का काम ये है, औलियाए ज़ाहिरीन का अपना एक रूहानी निज़ाम होता है। उनका अपना एक निज़ाम तरबियत का अपना एक निज़ाम होता है। लोगों की रुश्दो हिदायत के लिए, उनको सीधी राह पे लाने के लिए, अल्लाह की तरफ माइल करने के लिए उनका अपना एक ज़ाहिरी निज़ाम होता है। मुरीद करके लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ माइल करना, कदम मुस्तफ़ा तक पहुंचा देना, ये इनके मकासद में होता है के लिए। यानी इस तरह की ज़ाहिरी तालीम व तरबियत करने के लिए, रूहानी तालीम व तरबियत करने के लिए ये अल्लाह वालों ने कई मकामात पर मराकिज़ कायम किए हुए हैं। ये औलियाए ज़ाहिरीन हैं जिन्होंने रूहानी मराकिज़ कायम किए हुए हैं। इन्हीं मराकिज़ में मखलूक़ खुदा की रूहानी तालीम और तरबियत का निज़ाम ये चलाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक जो अल्लाह की तलब में है, तलब मौला के लिए आती है और ज़ौक़ दर ज़ौक़ आकर के रूहानी तालीम हासिल करके राह सुलूक पर चलते हुए, राह इश्क की मंजिलें तय करते हुए अल्लाह तबारक व तआला की कुर्ब की मंजिलें ये तय करते हैं। अल्लाह की कुर्ब की मंजिलें तय करने के बाद तक़र्रुब इल्लल्लाह हासिल करते हैं। ये है औलियाए ज़ाहिरीन का काम कि मखलूक़ खुदा में हज़ारों में से कुछ अफराद या लाखों में कुछ, चंद हज़ारों में कुछ अफराद जो अल्लाह तबारक व तआला के तक़र्रुब, उसके कुर्ब में आना चाहते हैं, मारिफत इलाही हासिल करना चाहते हैं, तो उनके दिलों में जब ये ज़ौक़ पैदा होता है तो उन्हीं कुलूब के तलाश में रहते हैं। और जब बंद मखलूक़ खुदा इनके पास आती है तो इनको ये ज़ाहिरी इनका एक निज़ाम होता है, एक रूहानी इनका मरकज़ होता है। इन्हीं रूहानी मराकिज़ को खानकाह कहा जाता है। बात समझ आ रही है? इन्हीं रूहानी मराकिज़ को खानकाह कहा जाता है, जहाँ पर
कल्ब, रूह, नफ्स, सिर, खफी, अक्फा, तमाम लताइफ की तालीम, कल्ब की, रूहानियत की, नफ्स की, दिगर जो चीज़ों की तालीम देते हुए इनके बातिन को रोशन करते हैं, और ताकि उसी रोशनी के अंदर मार्फत इलाही हासिल हो सके। यानी मारिफत नफ्स है, मारिफत खुद है, मारिफत इलाही है, ये सारी मनाजिल तय कराते हुए एक ज़ाहिरी इनका अपना निज़ाम होता है, जिनको औलियाए ज़ाहिरीन कहते हैं। अब दूसरा जो गिरोह है औलियाए मस्तूरीन जो कहलाते हैं, ये है रिजालुल गैब, जो पोशीदा औलिया अल्लाह हैं। समझ में आ रहा है? एक तो औलिया ज़ाहिरी निज़ाम वाले हैं जो जिनकी खानकाहों से, और मज़े की बात तो है कि इन्हीं ज़ाहिरी खानकाहों से भी इनकी तरबियत होकर के उस मकाम तक पहुँचते हैं। खानकाहें दर हकीकत औलिया अल्लाह के पैदा और इनकी तरबियत गाह होती है। ये औलियाए ज़ाहिरीन जो हैं, यहीं से तरबियत पा करके इस बड़े आला मकाम पर ये बंदे फाइज होते हैं। इनकी मखसूस तादाद होती है, आगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला से बताएंगे। तो ये औलियाए मस्तूरीन जो रिजालुल गैब जिनको कहते हैं, ये जो है औलियाए ज़ाहिरीन की तरह इनका कोई अपना ज़ाहिरी निज़ाम नहीं होता है। अल्लाह तबारक व तआला इनको बातनी और पोशीदा निज़ाम के कामों के अंदर अल्लाह ने इनको मामूर कर रखा है। औलियाए मस्तूरीन जो छुपे हुए मखसूस होते हैं, जो पोशीदा मकामात पर ये कायम होते हैं, और ये औलिया के अंदर आपने सुना होगा कि कुतुब अब्दाल, तो ये मकाम अब्दालियत पर होते हैं। समझ आ रहा है? इनके कई अक़साम हैं, मगर ख़ास तौर पे इनको अब्दाल कहा जाता है। ये अब्दालों में से होते हैं, और इनकी ज़ियारत भी अक्सर सूफिया और या औलिया की ख्वाहिश रहती है कि रिजालुल गैब से हमारी बातें हो जाए, मुलाकात हो जाए। ये इसका एक अलग मौजू है। शेख मुहिउद्दीन इब्न अरबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी कई रिजाल की सोहबत इख्तियार की है, पाई है, और आप भी रिजालुल गैब की तलाश में लगे रहे। बहुत सारे औलिया अल्लाह या सूफिया ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला का जब फजल होता है तो ये मर्दान गैब, रिजालुल गैब से इनकी मुलाकातें भी होती हैं, बातें भी होती हैं। समझ आ रहा है? तो औलियाए कराम, औलियाए ज़ाहिरीन और औलियाए मस्तूरीन, तो ये मर्दान गैब यानी रिजालुल गैब, ये औलियाए मस्तूरीन हैं, मगर हर एक को इनकी ज़ियारत नसीब नहीं होती है। रिजाल में से एक मनसब साबिकून का होता है। समझ में आ रहा है? साबिकून का लफ्ज़ आपके पास सुनने में अक्सर आया होगा। रिजाल में से एक मनसब साबिकून का होता है। प्यारे आका रहमत वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में हर ज़माने में साबिकून होंगे, उन्हें अब्दाल के नाम से जाना जाएगा। ये लोग नेक कामों में औरों से सबकत ले जाएंगे। जो आम लोगों के मुकाबले में ये नेक काम के अंदर लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। ये बड़े नेक और इम्तियाजी अशखास होंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं की बरकत से ज़मीन पर बारिशों को बारिश नाजिल फरमाता है। इन्हीं की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ में बरकतें नाजिल फरमाता है, और इन्हीं की दुआओं से, इन्हीं की बरकत से ज़मीन पर नाजिल होने वाली आफात व बलैयात को अल्लाह तबारक व तआला दफ़ा फरमाता है। ये वो है मर्दान गैब जिनको रिजालुल गैब कहते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे जो मगरबी तालीम याफ्ता या सल्फ़ी माइंड के लोग, या जो इस उलूम से मर्दान गैब के हालात या इनको जानते ही नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे, जो इनकी क्या नाम है, मौजूदगी से ही इनकार करते हैं, कि इनके वजूद का ही इनकार करते हैं कि रिजालुल गैब नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, या कोई इस तरह का कोई मर्तबा या कोई मनसब नहीं है। तो ऐसे लोगों को, इन लोगों से नाराज़ होने के बजाय, इनको हुज्जत करने के बजाय, ये सिर्फ हमको समझ लेना चाहिए कि ये जब बेचारे जानते ही नहीं है तो ये बात को समझेंगे कहाँ, कि जो जिस फील्ड का माहिर होगा, जो जिसकी जो फील्ड होगी, वो अपने ही फील्ड का माहिर होगा। ऐसे लोगों की सोच पर ना तो मुझे ताज्जुब है और ना किसी को ताज्जुब करना चाहिए। ये तो अवामुन नास की बात हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ, अपने यहाँ भी लोग, बहुत सारे उलमाए ज़ाहिर हैं जो रिजालुल गैब का नाम तक अब तक नहीं सुने हुए हैं। बहुत सारे सूफिया भी, ऐसे आमलीन भी जो हैं, जो नुकूश और अमलियात दिगर औराद व वज़ाइफ के काम में लगे रहते हैं, इनको भी खबर नहीं कि रिजालुल गैब भी कुछ होते हैं, है ना। जबकि रिजालुल गैब के मौजू पर कई हमने वीडियो बनाया है, और इस पर बनाए तो कम से कम काफ़ी वीडियो बन जाएंगे। कम से कम मुझे लगता है कि 25 से 30 वीडियो तो बन ही जाएंगे।
کہ ان کے کام کیا ہے، ان کے اوقات کیا ہے، کہاں رہتے ہیں، ان کے مقامات کیا ہیں، ان کی گردشیں چلتے پھرتے کہاں ہیں، یہ پوشیدہ کیوں ہیں. اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹی چھوٹی کلپ ایک کے بعد دیگر جو ہے کچھ ناگے کے اوپر ہم بنانا شروع کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو جو لوگ یہ انکار کریں گے یا جو لوگ سمجھتے ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو انکار کرنا ہے. جو آدمی سورج کو کبھی دیکھا ہی نہ ہو، چمگادڑ اگر کہہ دے کہ سورج نہیں ہے تو اس پہ ہمیں تعجب نہیں، چونکہ اس نے سورج کی روشنی میں کبھی اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولا ہے نا، تو وہ کیا جانے گا. تو جو لوگ اعتراض کریں گے، جو انکار کریں گے، ان کو خبر ہی نہیں اس چیز کی ہے. مگر بہرکیف یہ اولیاء مستورین ہیں جو چھپے ہوئے اولیاء اللہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی کام، روحانی باطنی جو روحانی نظام کے نگراں ہیں، اسی لیے ان کا سامنا اب ان کا سامنا کب ہوتا ہے، ان کی روح کب کہاں کیسی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو بنا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو، ہمارے بچوں کو اور اس امت کو مردان غیب رجال الغیب کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے. آمین ثم آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.